Riemann integration our function was in one variable, that is f of x, correct? Okay, so it is a to b and this is y equal to f of x. So if I say integration a to b f of x dx, that means it is, what is this is area under the curve f of x. Yes. Okay, in double integration here we are having a function in two variable, and graph will be something like this. This will be x, y, z, and here some graph will be there, and in this case we need to find the volume under volume above this surface under this curve. This is your function f of xy, volume under this surface, correct? So it will be something like this. Okay, is it clear? If I take it a circle as a base, then it will give me a cylinder, something like. Correct. So same like this, here it was area under this curve in this x-axis, same here also in this xy plane. This is working as a x-axis here, correct? And here I been having, this is my xy plane, and your curve, this is your function z equal to f of xy. Here it was y equal to f of x, correct? Can you see that relation between them? The theory is same. Yes, this was your function above the curve. You need to find area under this curve. Here I need to find, here also bound will be, अगर मैंने bound क्या लिया, rectangle लिया, correct? So graph will be something like this, rectangle. So bound, see I am drawing it on xy plane, so graph will be something like this only. समथिंग इधर भी ऐसे लाइन आएगा, जैसे घर बनाते ना हम लोग, सेम लाइक दैट. ऊपर ये रूफ है अपना, दिस इज माई रूफ, सो वॉल्यूम अंडर दिस रूफ, दैट विल गिव मी डबल इंटीग्रेशन. ओके, सो बेसिक इतना क्लियर है. ग्राफिकली करना क्या है, सेम लाइक दैट. ओके, द नेक्स्ट थिंग, उधर हम लोग ने क्या किया था, वी पार्टीशन. किसको पार्टीशन किया, अपनी बेस को. बेस क्या था, ए टू बी, इसको पार्टीशन किया एंड पार्ट में. यस, इज इट क्लियर? एंड व्हाट डिड वी डू, करेक्ट? वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस each rectangle and we add it and get the integration. Same like integration a to b f of x dx, it will be, सपोज मैं बोलता हूँ लिम सम की बात करता हूँ, दिस इज लिमिट समेशन r इक्वल टू 0 टू n और n माइनस 1 n. ओके, व्हाट इज दैट, b माइनस a अपॉन n, क्या था, ऑफ e प्लस r इंटू b माइनस a अपॉन n. Yes, is it clear everyone? यही था क्या? Let us see graphically what is the meaning of this. कर क्या रहा हूँ मैं इसमें? See what am I doing? A to B है, पहले इसको मैंने n पार्ट में डिवाइड किया, so each सब इंटरवल का लेंथ क्या आएगा, b माइनस a अपॉन n.
कैन यू सी दैट? जिसको मैंने ब्रेक किया, सो ये करेक्ट एन पार्ट में ब्रेक किया, सो ईच जो भी सब इंटरवल है इट हैज़ लेंथ बी माइनस ए अपॉन एन, करेक्ट। एक लाइन है ए टू बी, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया तो क्या आएगा, हर एक पार्ट का लेंथ क्या आएगा, बी माइनस ए अपॉन टू। तीन पार्ट में ब्रेक किया तो इट विल बी अपॉन थ्री। आई एम ब्रेकिंग इट इनटू एन पार्ट्स, सो दिस इज गिविंग मी बी माइनस ए अपॉन एन। इज इट क्लियर? सो जो ये विड्थ रहेगा दिस इज माई बी माइनस ए अपॉन एन। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट just one part. So this is my b minus a upon n. This is I am talking about length of this. Okay, so if I want coordinate, this coordinate, this coordinate, this coordinate, correct, what should I do? I should start with the first one. The first one is a, second one will be, what is the second coordinate? The first coordinate it will be a, second coordinate is a plus b minus a upon n. Third coordinate it will be a plus 2 times b minus a upon n, correct. What will be nth coordinate? A plus n into b minus a upon n, that is same as b. Is it clear? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नॉट बोलते हैं। दिस इज x1, दिस इज x2, करेक्ट, एंड दिस विल बी xn, करेक्ट। सो ईच एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं हम लोग, नोट्स बोलते हैं, करेक्ट। एंड ये सेट को क्या बोलते हैं, पार्टीशन। इज इट क्लियर? सो द थिंग इज दैट पार्टीशन में क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, ऐसा इंक्रीजिंग होना चाहिए इसके टर्म्स। इट इज़ एक्चुअली अ सेट ओनली, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू कंसिडर दिस, एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू। सेट है, उल्टा भी लिखा कैसा भी लिखा चलेगा, बट कंडीशन ये पता रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा भी लिखूँ इसको बी, फिर ये फिर लास्ट में ए लिखा, फिर भी अगर मैंने कंडीशन यही दिया है, दैट इज़ ए इज लेस देन बी, देन ऑल्सो इट इज़ ट्रू, बिकॉज दिस इज़ अ सेट। सेट में कुछ लोग को रखना मतलब क्या, जस्ट आई एम कीपिंग दैट एलिमेंट, and the set is what is set, collection. Okay, so suppose अपने को एंड पॉइंट मिल गया, करेक्ट। नाउ इफ आई टेक लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हाट डज दिस मीन हियर? यस, if I take limit and tending to infinity, means what, this length b minus a, it will be more shorter, correct. It will be something like a point. Yes, so if I reduce the width, so each rectangle will be something just like a thread or needle, say I'm saying each rectangle will be like a needle only, correct. So to find the area of that, what you have to do, you need to just add the number of needles, no actually height of needle, because each needle need not be of same height, see, correct. You know the width of needle, what is width of needle, b minus a upon n. Yes, and what is height of needle, height it is parallel to y axis, what will it be, f of that point, जो point पे है वो, e plus something, say r into b minus a upon n. Is it clear? So can you see that this height changes according to the point, r equal to 0 रखा तो this is giving me a, this height, correct. If r equal to something 50 रखा, so this will give me this height. So your width is going to be same here, b minus a upon n, and height keep on changing as per your function. Yes,
What I have to do? I should add all these things. R equal to 0 to n. Is it clear? When I am putting r equal to 0, can you see that this will give me f of a? When I am putting r equal to n, this will give me f of b. So I am having all the thing. What I have to do? Take limit n tending to infinity. Yes. So this gives me the area under the curve. Is it clear, everyone? Hello. So what did you just let me repeat it? First, what did I do? I just partition the set AB into n part. Each point is called nodes, correct? And what did I do? I just take limit n tending to infinity, means I am making this like a needle, making it more shorter. Yes, like a needle, something like each needle with width b minus a upon n, and the height will be this, correct? So to find area, I need to find just area of each needle type, something. Okay, let us go to our xyz double integration. Same theory will work here also. So this is my roof. What I have to do? I have to find volume under that roof, correct? Okay, is it clear? Is the question clear? So again the same thing. क्या किया था यहाँ पे? पार्टीशन किसको किया मैंने? बेस को पार्टीशन किया, करेक्ट? But here our base depends on two variable. Can you see that x axis and y axis also? Yes. तो सपोज अगर मैंने इंटरवल लिया, अगर ऐसा लेता हूँ मैं ए टू बी टाइप में ही लेता हूँ फर्स्ट. This is roof. Okay. So suppose this is my x axis, say E to B, and this is y axis from C to D. Okay. Means what is my function here? Function is from AB cross CD to R. This is your E, your region. Yes, is it clear? Hello. Is it clear? So in this case, what do you think? What should you do? You should partition both the set. Correct? I will partition this also. I will partition this also. Correct? Eh? Is it clear? Let us say I am partitioning this into n1 set, n1 nodes, and this into n2 part. Is it clear? So length of each, width of each node. What will be the width of each node? It will be b minus a upon n1. Is it clear? And here it will be d minus c upon n2. समझ रहे हैं तुम लोग को मैं क्या करने वाला हूँ? Yes. Now can you see that अगर मैंने इसको पार्ट किया, here also अगर मैंने पार्ट किया, करेक्ट है? और सपोज मैंने n1 गोज टू इन्फिनिटी बोला एंड n2 गोज टू इन्फिनिटी बोला, व्हाट डू यू थिंक क्या मिलेगा? जस्ट मुझे पॉइंट पॉइंट मिलेंगे. एक्चुअली इट इज़ अ रेक्टेंगल ओनली. कैन यू सी दैट? छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनेंगे. उधर क्या बने थे? छोटे छोटे लेंथ बने थे, करेक्ट? हियर छोटे छोटे रेक्टेंगल. बट इफ आई टेक लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n1 goes to infinity, n2 goes to, it will again give me just like a point. Yes. Let me make it same, like it will give me just like a needle. It will actually give me a bunch of needle,
सेम लाइक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, ऐसा टाइप. करेक्ट. So actually there is no gap in between. There will be all needles. Can you see that? So to find the volume करना क्या रहेगा अपने को? Same. Find the width of each needle. इधर width मेरा क्या रहेगा? That will be area. Can you see that? वो क्या था अपना 2D पे था, तो इधर width मेरा क्या रहता है ये. अभी इधर मेरा I am talking about this. Something like. करेक्ट. सो ये केस में नीडल नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि नीडल का वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा ना. दैट विल वर्क एज अ सिलेंडर का वॉल्यूम. ठीक है. यस, वेरी गुड. क्यूबॉइड. इट विल बी समथिंग लाइक अ क्यूबॉइड whose height something. Yes, correct. So did you understand the logic behind this इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, बहुत सारे नीडल्स को क्या किया, रखा इधर, एंड वी नीड टू फाइंड दिस एंड वी विल गेट द और एरिया. एंड हियर आई एम हैविंग बंच ऑफ नीडल्स, सो सबको साथ में अगर लिया, सो दैट विल गिव मी माई वॉल्यूम. करेक्ट. सो दैट वॉज बेसिक डेफिनेशन. बट अभी आते हैं अपना, हम लोग ने एक टर्म डिफाइन किया था, याद है तुमको? बिफोर दैट एम आई, कैपिटल एम आई, स्मॉल एम, कैपिटल एम. याद है ये नोटेशन? शायद याद होगा. व्हाट इज एम आई? एम आई क्या है? स्मॉल एम आई. इन्फीमम. करेक्ट. इन्फीमम का दूसरा नाम GLB of function xy in which interval. ऐसा नहीं लिखने का, जस्ट लेट मी रफ एवरीथिंग. कौन से इंटरवल में? ओके, पहले डायरेक्ट हम लोग डबल इंटीग्रेशन पे बात नहीं करेंगे, पहले सिंगल इंटीग्रेशन में देखते क्या किया था. ठीक है. ऐसा कुछ. सपोज दिस इज A, दिस इज B, okay. So what is my mi here? It is GLB of the function f of x in which interval? X lying between something xi to xi plus 1. Correct. So if I am talking about m0, what will that be? Yes, that will be the value of function in this interval. मिनिमम वैल्यू सपोज मैं बोलता हूँ ये. ठीक है. Let me change my color. Okay. So suppose this is my m0. What will be my m1? It will be GLB of here it is GLB of function in which interval? x0 to x1. Here it will be GLB of function in which interval? x1 to x2. Correct. Say this is my x0, this is x1, x2, x3, x4, x5 suppose यहाँ पे, and this will be xn. ठीक है. सो इतना क्लियर है तुम लोग को? समझा ये m1 m2 क्या रहेगा? So what will be my m1 here? See here, can you see that? Can you see that what is my m1? x1 और x2 इंटरवल में देखना है मेरे को. हेलो, हो कि नहीं तुम लोग? Okay, so in this interval what is the minimum value of function? Can you see that this is a decreasing function? Yes. So minimum value will be at
this point. Correct, that is x2 here. Okay, so this is my m1. What will be my m2, here or here? This will be my m2. Correct, x3. And same x4 here, here x pi, but here it may be something else. Just we need to take minimum, it may be in between also. Okay, is it clear now? So what next? What next we used to do? We need to find, we need to find area of each rectangle. Correct, and we are going to add it, and we will get, what is that called? Lower Riemann sum. Do you remember that? LPF. What is LPF? It will be summation mi into b माइनस सी अपॉन एन क्यू. सी अभी मैंने इधर, ये देखो ये पार्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस. सी एम आई के केस में इसका वेट्स क्या है? एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई. एम ज़ीरो की बात किया तो इट विल बी एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो. ये तुम चेंज भी कर सकते हो, किसी किसी बुक में यहाँ पे वन और टू से स्टार्ट करता है ऐसा. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर नोटेशन. ठीक है, सो दैट विल बी एम आई के केस में क्या रहेगा? व्हाट इज वेट्स? एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई. इज इट क्लियर? वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन. हेलो, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लो, लोअर सम बोलो या लोअर रेमान सम बोलो. दिस इज लोअर रेमान सम. ओके, नेक्स्ट सेम जी एल बी. हाँ, करेक्ट, जीरो टू एन माइनस वन. यस, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सेम अगर मैं कैपिटल एम की बात किया तो दिखेगा वो. ठीक है, मैं करता हूँ जो तुम लोग का रिवाइज होएगा. इवन एमसीक्यू में बहुत लोग ने इस पे गड़बड़ किया था. इस पे कुछ एमसीक्यूज थे. ये सब तो बेसिक था, इस पे मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था. तुम लोग के पेपर में बहुत मिस्टेक था ये टाइप में. सो दिस इज ए, दिस इज बी. करेक्ट. सो कैपिटल एम वन क्या बोलूँगा इधर मैं? एल यू बी, दैट इज योर सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इन विच इंटरवल? सेम एक्स जहाँ पे भी बोलो तुम लोग, एक्स नॉट टू एम आई की बात कर रहा हूँ ना मैं. सो दिस विल बी एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन. ठीक है, ये देखो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मैं चेंज भी कर दिया. अगर मैं ज़ीरो से वन से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, समझ रहे हैं? अगर मुझे वन से स्टार्ट करना रहेगा तो मैं एम ज़ीरो नहीं बोलूँगा इसको फर्स्ट टर्म को. आई विल से दिस इज़ एक्स वन, ऐसा. सो वो तुम लोग को समझना है, बहुत सारे बुक में दिया है. ओके, let us see now what is m1. it is lub of function in which interval? सॉरी m0 पहले ना, हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट विल बी बिटवीन x0 x x1. yes, दिस इज माई x0, दिस इज माई xn. ठीक है, समझ रहे हैं तुम लोग को? ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट m0. m0 is between x0 and x1. सो व्हाट इज मैक्सिमम? लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसमें? Can you see that this is again decreasing function? So least upper bound is the starting point. Yes. Like this. Same. This is my m0. What is my m1? Will this be my m1?
this will be my m2, correct? This will be my m3, okay, like this, okay. So ये जो आएगा उसको मैं अपर सम बोलूँगा, उसका नोटेशन क्या है, यूपीएफ, व्हाट इज दैट, समेशन करेक्ट, एंड दिस विल बी विड्थ, डिस्टेंस क्या है, सेम, xi plus 1 minus xi, okay, and what is this, I is going from 0 to n minus 1. Yes, clear? Okay, so this is called upper sum, करेक्ट, अपर रेमन सम बोलो या अपर सम बोलो, ठीक है. अब कैन यू एनालाइज द सेम थिंग हियर ऑल्सो. वैसे इधर ज़्यादा दिखेगा नहीं अपने को, बट ट्राई टू सी. हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, इधर ग्राफिकली तो हम लोग नहीं बात कर सकते ज़्यादा. इट विल बी सेम जैसा बोला तुमने, क्यूबॉइड. करेक्ट. सो डबल इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया अंडर द रूफ, एक्चुअली वॉल्यूम अंडर द रूफ, करेक्ट. दिस इज माई रूफ, ठीक है. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस. So this is A, B, this is C, this is D. So what I am going to write is A to B, C to D, f of x comma y, dy dx लिखो चलेगा, correct. dx limit on x is A to B and dy limit on y is C to D, okay. सेम इधर भी एम आई डिफाइन करते हैं. what do you think, what will be my mi here? स्मॉल एम आई क्या रहेगा, बिफोर दैट पहले एक पार्टीशन बनाते हैं, करेक्ट. इधर पार्टीशन क्या रहेगा, कोई बताएगा. हियर वी आर हैविंग टू पार्टीशन फर्स्ट, करेक्ट, रेक्टेंगल. तो पहले दो पार्टीशन क्या रहेंगे, पहला पार्टीशन क्या रहेगा, x0 इज a, x1 x2 अप टू xn, n1 बोलूँ अगर मैं, तो दिस विल बी माई b, yes. And here it will be y0, that is c, y1 y2 and yn2 equal to b. see ये n1 n2 इसलिए मैंने लिया, this need not be same, correct. we can choose it same but this need not be same, okay. shall I move ahead? okay, now the thing is that अपने को उधर क्या था, इसका डिस्टेंस ही अपना विड्थ हो जाता था, बट इधर अपना विड्थ नहीं रहेगा, इधर वी आर हैविंग अ समथिंग, क्या रहेगा वो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, करेक्ट. ये पार्ट सपोज मैं बोलता हूँ, ठीक है, यस. जिसका लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या रहेगा, कैन समबडी टेल मी. डिपेंड्स ऑन जो हम लोग अगर xi to xi minus 1 पे लिया, से दिस इज xi minus 1 और दिस इज xi and this is yi minus 1 and this is yi. So can you see that what will be the length and breadth? और अगर अब पहले जैसे कि केस में लेना है तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे xi to i plus 1. ये तुम लोग को समझना चाहिए, हाँ. इसलिए मैं बार बार दोनों पे जा रहा हूँ, दोनों केस में जा रहा हूँ. अपने को कोई भी टॉपिक पे मतलब याद नहीं करना है ऐसा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो ये वाई आई लिया और ये वाई आई प्लस 1 लिया,
Here, so this is actually a rectangle, something like this. सेम मैं वही यही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. So this is my xi, this is I plus 1, correct. ठीक है. And what is this? y प्लस 1. ठीक है. अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो तुम लोग. I माइनस 1 लिया तो इधर भी चेंज करके, ठीक है. सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस? इट विल बी xi प्लस 1 माइनस xi इंटू yi प्लस 1 माइनस yi. इज इट क्लियर? ओके. सो कैन समबडी टेल मी अभी क्या करें? इधर लोअर सम निकालने के लिए पहले तो एम आई चाहिए. हाँ. और इसको मैं ये इंटरवल को बोलूँगा, ये रेक्टेंगल को बोलूँगा आर आई जे. आर आई जे. इट इज़ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल लिखते कैसे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट ना. सी ए बी क्रॉस सी डी लिखा, इसका मतलब क्या है? ए बी क्रॉस सी डी लिखा, इसका मतलब क्या है? एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी डी. करेक्ट है. सेम आर आई जे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक्स आई टू एक्स आई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय. वेरी वेरी गुड, परफेक्ट. सो दिस इज माई रेक्टेंगल, जो भी स्मॉलर पार्ट रहा, ठीक है. ओके. व्हाट इज माई पार्टीशन? इधर पार्टीशन क्या रहेगा अपना? कैन यू सी दैट पार्टीशन भी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट ही रहेगा एक्चुअली, दोनों का. करेक्ट. एरिया ऑफ आई आर, दैट इज आर आई जे. ठीक है. तो इस पे बाद में जाते हैं, पहले एम आई डिफाइन करते हैं जो अपना है. व्हाट इज एम आई? यस. सेम अगर वो टर्म में डिफाइन किया तो इट विल बी जी एल बी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर आई जे. आर आई जी ये है तुम्हारा. अगर और अच्छे से लिखना है तो तुम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा. जी एल बी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, पहले जैसा अपना, वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन दिस एंड वाई इज लाइंग बिटवीन दिस. व्हाट इज दैट? This is xi, this is xi plus 1, this is yi, this is yi plus 1. Yes? Yes, is it clear? Okay. So now observe one thing. So GLB of function मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग को समझना चाहिए GLB of function मतलब क्या. सपोज ये अपना है आर आई जे. ठीक है. सो ये रेक्टेंगल में कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिसमें मेरे को GLB मिलेगा, समझ रहे? इट मे बी एनीथिंग. मतलब ऊपर का मेरा रूफ नीड नॉट बी, roof depend on your function. Okay, roof need not be a rectangle only. करेक्ट है. रूफ मेरा कैसा भी हो सकता है. ठीक है. कहीं पे मतलब थोड़ा हाइट कम रहेगा, कहीं पे ज़्यादा रहेगा, ऐसा. सेम जैसे उस पर बात किया था हम लोग ने. सो इट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स में, कहीं पे हाइट ज़्यादा, कहीं पे कम. हियर ऑल्सो आई होप तुम लोग को समझ रहा होगा. ये डिपेंड करता है पूरा मेरे रूफ पे. जो हाइट है नीडल का हाइट मेरा, दैट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन. हाउ इज़ योर फंक्शन. सो ग्राफिकली इस पर हम लोग ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन टू फंक्शन. करेक्ट, लाइक पोटैटो. वेरी गुड. यस. सो वो केस में भी ऐसा ही कुछ रहता है. कहीं पे हाइट अगर लिया तो ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा, ऐसा टाइप. वेरी गुड. कहीं पे अगर इधर लिया तो सबसे कम. यस. ओके.
आई होप इट इज क्लियर. सो स्मॉल एम आई मैंने डिफाइन कर लिया, तो व्हाट इज माई एल पी एफ. एल पी एफ क्या रहेगा? हाँ, एंड वन मोर थिंग, इधर मैंने शायद दोनों को आई आई ही बोल दिया. नहीं, एक आई पे वेरी कर रहा है और दूसरा जे पे रहेगा ना. दैट इज़ डिफरेंट थिंग. सी, मैंने इसको डिफाइन कैसे किया है. आई का वैल्यू कहाँ से है? 0 to n1 तक है. एंड जे का वैल्यू, मतलब वाई का लिमिट क्या है? 0 to n2 तक. कैन यू सी दैट? मीन्स योर आई वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to, अगर 0 से स्टार्ट किया तो अप टू n. करेक्ट है. जे का बात किया तो इट विल n1 हो गया, ये n2 हो गया, वो n2 रहेगा. ठीक है. सो एल पी एफ क्या रहेगा? व्हाट विल बी आवर एल पी एफ? उधर क्या था? समेशन एम. यहाँ पे एम किस पे वेरी करेगा? एम आई नहीं बोल सकते सिर्फ. करेक्ट है. इट वेरी ऑन जे ऑल्सो, सो एम आई जे बोलेंगे यहाँ पे. यस, डिपेंड्स ऑन जे ऑल्सो ना, वाई एक्सिस. सो इट विल बी समेशन एम आई जी नेक्स्ट इंटू एम आई जी. क्या हो गया? फंक्शन का वैल्यू, मतलब हाइट हो गया नीडल का ना. नेक्स्ट अपने को एरिया ऑफ नीडल चाहिए, विड्थ. विड्थ अपने में क्या है? इधर ऊपर मैंने बात किया आर आई जे का एरिया. दिस विल बी माई विड्थ. कैन यू सी दैट? सो व्हाट इज दैट? एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई एंड वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई. करेक्ट है. समेशन दोनों पे आएगा. डबल समेशन आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 से कहाँ तक रहेगा ये? यस, कहाँ तक रहेगा? आई का वैल्यू n1 और जे का वैल्यू n2 - 1. सी, एक्स आई प्लस 1 बोला है ना, तो लास्ट टर्म को मेरे को इधर n-1 ही लिखना चाहिए था. आई का वैल्यू n1 - 1, बिकॉज तभी ये n नोट्स होंगे. वो सब ज़्यादा उस पर डिटेल पे हम लोग जब उस पर जाएंगे तो समझेगा. जस्ट अपने को ये नोटेशन समझो. व्हाट इज दिस स्मॉल एम आई जे? दिस इज जी एल बी ऑफ द फंक्शन. और ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? हेलो. हेलो. ओके. सो किया क्या उन्होंने? सो यहाँ पे ये आर आई जे की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे है मेरा आर आई जे. हियर ऑल्सो आर आई जे. करेक्ट. सो इन बिटवीन मेरे को देखना है कि सबसे मिनिमम मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा. दैट विल बी गिवन बाय एम आई जे इंटू, अगर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड निकालना है अभी अपने को. सो क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच. सो योर हाइट अगर बोला तो हाइट मेरा ये आ जाएगा एम आई जे. एंड लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी इंटू एच. करेक्ट. एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज दिस इज माई लेंथ and this is my breadth and this is my height. Is it clear everyone? Okay. This is क्या बोलेंगे इसको? लोअर रिमान सम.
ओवर रेमानसम। सी तुम लोग का अगर ये अपोस्टल देखे तो उसमें आई थिंक आई इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट किया, तो मोस्टली वी विल ट्राई टू फॉलो दैट ओनली। वो देखेंगे बाद में, अभी जस्ट ग्राफिकली समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एम आई जी क्या रहेगा? कैपिटल एम आई क्या होता है? व्हाट इज माई कैपिटल एम आई? यू सी दैट LUB of function in that interval. Hello. Okay, what will be my capital MIJ? Same LUB of function where x comma y belong to Rij. करेक्ट? और अच्छे से लिखना है तो ये क्या आएगा, इट विल बी LUB ऑफ फंक्शन, पहले वाले के केस में इट विल बी वेयर x इज लाइंग बिटवीन एंड y इज लाइंग बिटवीन। करेक्ट है? यहाँ पे तुम्हारा डिपेंड करता है क्या लेना है, I2 I+1 ही लेते हैं अभी हम लोग। y will be yg, करेक्ट? दिस विल बी yg+1। ठीक है क्या? yes, is it clear everyone? so this will give me a height, so what is my UPF? बोलो UPF क्या रहेगा? सेम डबल समेशन MIJ इंटू xi+1 minus xi into yi+1 minus yi. Yes, where I is running from, j is running from, I is running from 0 to n1 minus 1, and j is running from 0 to n2 minus 1. Is it clear? जस्ट पुट कर लेने का, I इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा मेरे को, आई विल बी गेटिंग x0 x1 माइनस x0, दैट इज़ माई फर्स्ट लेंथ, एंड I इक्वल टू अगर n-1 पुट किया तो दैट विल गिव मी xn minus n-1. कैन यू सी दैट? दिस इज माई I n xi+1. if I put I equal to n1 minus 1, this will become xn1 minus xn1 minus 1. समझा क्या? सो ये सब इतना समझना चाहिए तुम लोग को, मेन फोकस अपना इस पे करना है। ठीक है? इज इट क्लियर? यूपीएफ का डेफिनेशन क्लियर है क्या? एलपीएफ, यूपीएफ। यस एवरीवन, अगर रिपीट कराना है तो बोलो, मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि जस्ट इसका अगर डेफिनेशन क्लियर है तो बाकी सब फ्लो होएगा, इजी है। सेम लाइक हम लोग पहले इंटीग्रेशन में देखेंगे।